My name is Satyavir Singh. I am the faculty of Civil Engineering Department. In this year, I will teach you fluid mechanics subject. The code of the fluid mechanics subject is KCE 303. तो ये आप ध्यान रखेंगे. And in this year, if we talk about the introduction of the fluid mechanics, then we can say that in case of civil engineering point of view, the civil engineers want to know about the fluid mechanics because in the government engineering department, when you are selecting in the post of assistant engineer, junior engineer, then you will you have to know about the fluid mechanics because you will understand the turbine and fluid areas, etc. So there are 5 units in fluid mechanics. The code of the fluid mechanics you can note down. This is K C E 303. This is the code of subject है आपका fluid mechanics. तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या KCE 303 दिस इज द पेपर. In case of lab, fluid mechanics lab, तो FM lab, the code is KCE 353. Okay, basically if we talk about the introduction of fluid mechanics, so what is fluid mechanics? The fluid mechanics is the branch of science that deals with the behavior of fluid at rest as well as in motion. If we talk about the behavior of fluid at rest, so this is known as fluid statics. Okay, so we can say that fluid statics is the behavior of fluid at rest, while fluid dynamics is the behavior of fluid in motion. So this is the basic about the fluid mechanics. So what is the fluid? If we talk about the fluid, so what is fluid? Fluid means any substance which may be liquid or gas. So liquid or gas is called fluid. So it can flow. So you can say that fluid basically liquid, all the liquid or like petrol, diesel, water, these are all the liquid which comes under the category of fluid. So liquid and gas both are fluid. Okay. अब हम देखेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है. ठीक है ना. व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड इन केस ऑफ यूनिट 1. तो दिस इज यूनिट 1 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, तो यूनिट 1 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आपका, तो ये आप देखेंगे कि यूनिट 1 में आप क्या क्या डिस्कस करेंगे. नंबर 1 फर्स्ट इज व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. Okay, second is what is fluid and continuum. This is the second topic, and third topic you can read the properties of the fluids. Okay. And next topic you will read in the case of fluid mechanics subject are the rheology diagram. The rheology of the fluid. Okay, so तो we next यदि हम बात करें, next topic जो आपका होगा वो होगा fluid measurement. Just like you can read the pressure measuring device. Pressure measuring device. Pressure measuring device में क्या आता है, like the मैनोमीटर है. मैनोमीटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. आपके यूट्यूब मैनोमीटर हो सकता है. It may be YouTube manometer. Okay, it may be inclined tube manometer.
तो ये सब क्या है, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब हम देखेंगे कि वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन में आता है। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूनिट 1। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट जब टीचर की बात को ध्यान से समझता है तो वो ये सीखता भी है कि क्या क्या टीचर ने बताया, हमें क्या पढ़ना है और क्या हमारे सिलेबस में है। आपको करना क्या है कि जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको रिवाइज करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम उसके क्या है डाउट्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे, फर्स्ट है हमारा फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड is the substance that can flow. It may be a gas or it may be a liquid. सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो क्या था? कॉन्टिनम। तो व्हाट इज कॉन्टिनम? कॉन्टिनम इज बेसिकली द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विद नो वॉइड और एम्प्टी स्पेस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इज एयर इज ए कॉन्टिनम, तो आप कह सकते हैं यस, एयर इज ए कॉन्टिनम। लिक्विड है वो भी हमारा कॉन्टिनम होगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्टिनम क्या है? इट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विद नो वॉइड और एम्प्टी स्पेस इन इट। नेक्स्ट जो टॉपिक आप को डिस्कस करना है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज। तो ये हम किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं, इनमें पहली प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी आती है, आपने जनरली सुना होगा कि भाई हमारे पास होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। तो देखिए, फ्लूइड प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी में आप नोट डाउन करेंगे, फर्स्ट आएगा हमारा डेंसिटी। फर्स्ट वन इज डेंसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। डेंसिटी में यदि हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ मास इज केजी, while the unit of volume is meter cube in case of SI. So you can say that the unit of density is kilogram per meter cube. This is the unit of density. Density is sometimes known as mass density and so this is also called mass density because mass is there. Mass density. दूसरा हम देखेंगे कि जो डेंसिटी होती है, यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? तो रो डब्ल्यू इंडिकेट द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जनरली हम देखते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी? तो ये यूनिट होगी आपकी, देखिए मास जो किलोग्राम है, किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम हो जाएगा, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, और ये जो विस्कोसिटी की यूनिट है किसमें? सीजीएस सिस्टम में ये आपकी यूनिट होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, डेंसिटी. नाउ डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो. सेकंड हम देखेंगे स्पेसिफिक वेट. तो व्हाट इज स्पेसिफिक वेट? Specific weight is defined as the ratio of weight per unit volume. क्या होता है स्पेसिफिक वेट? इट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. तो आप देखेंगे स्पेसिफिक वेट को यदि हम मैथमेटिकली ड्राइव करें तो ये होगा वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो वेट जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है m इंटू जी, और वॉल्यूम के लिए हम नोटेशन लिखते हैं v कट ले सकते हैं. ठीक है, v कट इज नथिंग बट द वॉल्यूम. जो हमने v कट का नोटेशन लिया है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम. नाउ वी कैन से दैट देखिए इसमें आप m इज द मास एंड g इज द वेयर g इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So this is called the acceleration due to gravity, and m is the mass, and we all know very well that this m upon v, this is called the density, or you can say the mass density, and its notation is क्या होता है हमारा mass density का notation रो हमने लिया था. तो हम देखेंगे कि देखिए ये जो पोर्शन हमारा इतना होगा इसको हम कहेंगे क्या, डेंसिटी, दैट इज रो. ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा रो इंटू जी. तो यू कैन से दैट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी. स्पेसिफिक वेट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. ओके, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है रो इंटू जी. डब्ल्यू इज नॉन एज द स्पेसिफिक वेट. तो दिस इज द सेकंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो भी हम देख लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो थर्ड इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. In case of specific volume, you can say that it is the ratio of volume per unit mass. Volume upon mass. So this is called specific volume. In case of specific volume, if volume is denoted by V cut and mass is denoted by m, then you can say that it is also can written in the form of m upon V cut. Okay, so this is further can be changed 1 upon rho. Rho is nothing but where rho is the density and its value is mass upon volume. ये क्या था आपका डेंसिटी था. तो ये हम देख सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज नथिंग बट ओनली द रेशियो ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम. और जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. तो ये कह सकते हैं कि जो ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक, you can say that density, reciprocal of density. So this is the property number third. Okay, हम बात करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने डिस्कस किया, हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की. क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर 4, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. So what is specific gravity? Specific gravity is defined as the ratio of specific weight of a fluid, जो हम कह सकते हैं specific weight of any fluid upon specific weight of standard fluid. किसी को बात करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, तो आप देखेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो आपने देखा कि जो स्पेसिफिक वेट होगा, स्पेसिफिक वेट क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो देखिए द स्टैंडर्ड फ्लूइड मे बी वाटर एंड एयर.
ठीक है, वाटर एंड एयर। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर इन केस ऑफ लिक्विड, बट स्पेसिफिक वेट ऑफ हम देखेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे लिए वाटर था कब, लिक्विड केस में, और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा एयर होगा कब, गैसेस के केस में। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट ओनली द स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड एंड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेना है। अब हम देखेंगे, ऊपर हमने ड्राइव किया था कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, ठीक। तो हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक वेट में, कि ये जो स्पेसिफिक वेट था हमारा, तो इसमें क्या है। तो स्पेसिफिक वेट को हम फर्दर कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। तो हम देखेंगे विच इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड इज नोन एज, फॉर्मूला क्या था हमने स्पेसिफिक वेट का, रो इंटू जी डिवाइड बाई, अब देखिए कोई एनी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो रो एम ले लीजिए, डिवाइड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हमारे लिए वाटर है, और किस केस में, जब हम किसी बात कर रहे हैं लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो रो डब्ल्यू इसमें क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड रो एम क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रो एम क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाई, ये हमारा क्या एम है, और हम लिखेंगे रो डब्ल्यू, दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो in the formula G cancel out, then a new formula is arises, that is rho m, और ये देखिए इधर हम लिख देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का नया फॉर्मूला हमारा क्या बना, रो m डिवाइड बाई रो w। तो यू कैन से दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एनी लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड का कंसीडर किया है, वाटर कंसीडर किया है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या कंसीडर किया है। तो यदि हम स्टैंडर्ड फ्लूइड को हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो ये लिक्विड केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। यदि हम एयर लेते हैं तो वो होगा गैसेस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड। हम टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे मेजर करेंगे। तो ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को यदि हम बात करें डिनोट कैसे करेंगे, तो देखिए SP.GR, तो इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। हमें क्या है, देखिए एक कभी कभी न्यूमेरिकल इसमें आ जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप मतलब डेंसिटी कैसे निकालेंगे आप, यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। तो देखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है हमारी 13.6। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ये होती है 1.0। तो यदि हमें किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो हम उसकी डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको एक रिलेशन इसमें पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है, देखिए जो हमने पहला फॉर्मूला देखा था, तो पहला फॉर्मूला क्या था, ये था। तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसे इक्वल है, रो एम अपॉन रो डब्ल्यू। तो ये हमें रो एम निकालना है। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेंसिटी निकालनी है मरकरी की, इसकी डेंसिटी निकालनी है, मरकरी की डेंसिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ मरकरी if its specific gravity is given as, आप देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन एज कितना है 13.6। तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है किसकी, मरकरी की। मरकरी क्या होता है, मरकरी एक मेटल होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर है, जो बुखार हम नापते हैं, फीवर हो जाता है तो हम नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें मरकरी डला होता है। तो उससे क्या होता है कि हम आराम से जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेजर कर पाते हैं। तो ये बहुत
हार्मफुल होता है, इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए जब भी हमने ये मुंह के अंदर या हमने इसको फीवर चेक करने के लिए हमने लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें हमें ध्यान से रखना है कि वो टूट ना जाए, क्योंकि यदि मरकरी आपके माउथ के अंदर रह गई तो वहाँ पर क्या है होल क्रिएट कर देगी और आपका वहाँ पर क्या है बर्निंग हो जाएगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि मरकरी आपके किसी बॉडी पार्ट पे ना लगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना था, हमें सॉल्यूशन चाहिए इसका। क्या चाहिए हमें? सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने देखिए फॉर्मूला था स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक नंबर, ये देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है रो एम अपॉन रो डब्ल्यू। तो व्हाट इज रो एम? रो एम इज द डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। अब यहाँ एनी फ्लूइड क्या है, हम किसकी डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं? मरकरी की, तो यह रो एच जी आ जाएगा डिवाइड बाई नीचे का लेना है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई then you can say that rho hg, this is rho hg is equal to rho w multiply by the specific gravity। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बताया थी कितनी 1000 होती है, मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 13.6। तो जब 13.6 आप रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 136 और 2 0। तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी किसकी हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी। तो इस तरह हमारे पास क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। ओके, इट इज क्लियर। नाउ विल टॉक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये हमने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि आपको पढ़नी है, वो क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज देखिए नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी को समझने के लिए आपको क्या है, सपोज दिस इज द पाइपलाइन और इन दिस पाइपलाइन यू कैन से दैट ए फ्लूइड इज मूविंग। ये क्या है हमने लिया वाटर, वाटर इसके अंदर क्या है फ्लो कर रहा है इस पाइपलाइन के अंदर। तो देखेंगे यदि हमने इस पाइपलाइन की देखिए पेरीफेरी डिसाइड कर दी है, पेरीफेरी का मतलब हमने क्या है इसकी बाउंड्री डिसाइड कर दी है कि ये पाइप का साइज क्या होगा। तो आप देखेंगे तो ये हमने लिया इसकी सेंटर लाइन, पाइपलाइन की क्या है सेंटर लाइन। तो दिस इज नथिंग बट ओनली द पाइपलाइन एंड दिस वन इज नॉन एज वाटर कंटेंट। क्या है वाटर है इसके अंदर। ये क्या है इनलेट है एंड दिस क्या है पाइपलाइन का क्या है आउटलेट, दिस इज आउटलेट सेक्शन। ओके, अब हम देखेंगे विस्कोसिटी को हमें डिफाइन करना। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज नथिंग बट ओनली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लिक्विड लेयर ओवर द अनदर एडजेसेंट लिक्विड लेयर। तो क्या होता है विस्कोसिटी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लिक्विड लेयर ओवर द अनदर एडजेसेंट लिक्विड लेयर। जैसे हम देखेंगे ये हमारी क्या है पहली लिक्विड लेयर है, ये हमारी क्या है दूसरी लिक्विड लेयर है, ये क्या है तीसरी लिक्विड लेयर है। तो इस तरह क्या है जो डिफरेंट लेयर है हमारी, तो उन्हें हम देखेंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक लिक्विड लेयर दिखा दी, ठीक है, ये क्या है हमारी फर्स्ट लिक्विड लेयर है, दिस इज द सेकंड लिक्विड लेयर एंड दिस इज थर्ड लिक्विड लेयर, दिस इज द फोर्थ लिक्विड लेयर। तो whenever the liquid is flowing in the pipeline, then each liquid layer has a certain velocity, fluid velocity, and due to this different fluid velocity की वजह से क्या होता है fluid resistance पैदा होता है, उसी को हम कहते हैं viscosity। तो viscosity is nothing but only the resistance offered by one liquid layer over the another adjacent liquid layer। तो this is viscosity। एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसे हमें डिस्कस करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को हमें समझना है तो हमें क्या है एक फॉर्मूला याद रखना होता है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या है आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे तो हम एक ग्राफ एक प्लॉट कर लेंगे, या हम एक मैथमेटिकल टर्म में कह सकते हैं कि देखिए दिस इज द म्यू, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्ट टू द du अपॉन dy, ठीक है। तो म्यू इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस।
and du upon dy is the rate of shear strain. Rate of shear strain. So according to Newton's shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. It is also called rate of shear deformation and also called the velocity gradient. So this is mu is equal to या आप कह सकते हैं, देखिए ये जो हमारा म्यू था हम इसकी जगह क्या लेते हैं सिग्मा. सिग्मा इज द स्ट्रेस. ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कंबाइंड फॉर्म में. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसके हेल्प से आप इसे कर सकते हैं. तो क्या होता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द du अपॉन dy, where sigma is called the shear stress and du upon dy is this is called the rate of shear strain. It is called shear deformation also and it is called the velocity gradient also. तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि क्या होता है. यदि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहें तो ये क्या मिल जाएगा आपको, जो देखिए ये जो शियर स्ट्रेस है दिस इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy. दिस इज du. du क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी और सिंपल विस्कोसिटी भी इसको कहा जा सकता है. इसमें देखिए du जो है, du क्या होता है, this is called a change in velocity. Change in velocity. Final velocity minus initial velocity. और dy क्या होता है, इसमें fluid thickness होता है. Fluid thickness. ये जो हमारा mu होता है, mu is called the viscosity. और देखिए इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इन केस ऑफ SI, और CGS में इसकी यूनिट होती है, क्या कहते हैं CGS में, लेकिन न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ओके, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू.